یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی گیم کے خلاف گیم کھیل رہا ہے. یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی. ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا. اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. نواز شریف دوسرا بانی MQM بن گیا. سابق وزیر اعظم بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. احتجاج اپوزیشن کا حق، قانون توڑا تو سب جیل جائیں گے. وزیر اعظم کی وارننگ، استعفے آنے پر الیکشن کرا دیں گے. عمران خان کا ٹی وی انٹرویو. اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے، جو تنقید کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب، آپ اس ملک میں 3 دفعہ آپ کو اس قوم نے چانس دیا. آپ نے بجائے ادارے بنانے کے آپ نے اداروں کو تباہ کیا. لگتا ہے نواز شریف پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں. وہ نیلسن منڈیلا بن کر عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں. سابق وزیر اعظم نے ذاتی پیسہ بچانے کے لیے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی. وزیر اطلاعات شبلی فراز. وہ پاکستان کی اکانومی کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ بڑی سٹیبل اکانومی تھی اور بڑا اچھا چل رہا تھا، پہلے وہ چاہ رہے تھے حکومت میں اور فوج کے اندر تقسیم ہو، عدلیہ کے اندر تقسیم ہو. جب ادھر سے ناکام ہوئے ہیں اب اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. نواز شریف نے ملک کی نہیں اپنے خاندان کے کاروبار کی بات کی. سابق وزیر اعظم کو اپنا حلف بھی یاد کرنا چاہیے. لیگی قائد اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. فواد چوہدری. حکومت لانگ مارچ سے پہلے ہی گر جائے گی. مریم نواز کی پیش گوئی. اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں. نون لیگ متحد ہے. گرفتار کیا گیا تو کئی رہنما مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ جائیں گے. لیگی رہنما. حکومت مخالف تحریک کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ PDM کا آج اہم اجلاس. تحریک کے سربراہ اور مرکزی عہدیداروں کے حوالے سے مشاورت بھی شیڈیول. آصف زرداری اور فضل الرحمان بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے. ڈاکٹر سمد مبارک مند نے نواز شریف کے دعوے کی تردید کر دی. ٹام ہاک میزائل انتہائی پیچیدہ ہے. پاکستان کو چند ٹکڑے ملے تھے جو بے سود تھے. تباہ شدہ ملبے پر کیا ریسرچ کی جا سکتی ہے؟ معروف سائنسدان کا سوال. کورونا سے 24 گھنٹے کے دوران 15 افراد جان کی بازی ہار گئے. مزید 625 افراد مہلک وائرس میں مبتلا. وبا سے اب تک 3,13,431 شہری متاثر. ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,877 رہ گئی. کراچی میں کورونا کا زور. بستی کے بعض ضلع جنوبی میں بھی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن. شہریوں کے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے پر پابندی. SOPs کی خلاف ورزی پر ضلع شرقی میں 7 ریسٹورنٹ سیل کر دیے گئے. اشتعال انگیزی پر منہ توڑ جواب. پاک فوج کی لائن آف کنٹرول پر جوابی کارروائی. بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان. 3 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق. 2 فوجی نوگام سیکٹر اور 1 کرشنا گھاٹی سیکٹر میں مارا گیا. انڈین حکام. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندر. میں ہوں مریم ذیشان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو. امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے. صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا قرنطینہ میں چلے گئے ہیں. آپ کو یہاں بتائیں کہ ٹرمپ کی مشیر ہوپ ہکس میں
कोरोना की तशखीस के बाद दोनों के टेस्ट किए गए थे और रिपोर्ट के मुंतजिर थे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इससे पहले उनकी मुशीर होप हिक्स के मुतालिक बताया गया था कि उनमें कोरोना की तशखीस हुई है, जिसके बाद अमरीकी सदर और खातून अव्वल दोनों के टेस्ट लिए गए थे। और अमरीकी सदर ने ट्वीट भी किया था और कहा था कि होप हिक्स जो बगैर किसी ब्रेक के काम कर रही थी वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ है और नताइज का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि अमरीकी सदर ट्रंप और खातून अव्वल अमरीका मेलानिया ट्रंप भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, जिसके बाद दोनों करंटीना में चले गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ हैं। वो भारत की मदद से खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उनका कहना था कि एहतजाज ऑपोजिशन का हक, कानून तोड़ा तो सब जेल जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के इस्तीफे आने पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया। में सिविल और मिलिट्री रिलेशन की एक मसला रहा है हमारा। पहले सिर्फ एक चीज का हमने फैसला कर, माजी होता है सीखने। हमने सीखा ये है कि मिलिट्री का काम गवर्नमेंट चलाना नहीं है। मुझे कोई बता दे कि एक जगह जो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तानी फौज ना है, जो नवाज शरीफ है, ये कभी भी डेमोक्रेट नहीं था। पहले तो इनको पाला फौज ने, जनरल जलानी से शुरू हुए, जनरल ज़ियाउल हक ने कैसे इसको हाथ पकड़ के मुंह पे चूसनी लगा के तो एक पॉलिटिशियन बनाया। ये एकदम बन गया सुपर डेमोक्रेट। मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम है? ये आते हैं चोरी करने के लिए। इनका प्रॉब्लम ये था कि फौज कंट्रोल में नहीं थी, बाकी जुडिशरी भी कंट्रोल में थी, नैब भी कंट्रोल में थी। जब इनके कंट्रोल में नहीं होती थी इनको ये जमहूरी बन जाते थे। अब इनका प्रॉब्लम, अब देख लें, ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते हैं। मुझे वो फौज ने आके जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? जो डेमोक्रेसी है उसमें आपकी मॉरल अथॉरिटी काउंट करती है। बंदूकें तो आपके पास नहीं होती, वो तो फौज के पास है। 2/3 मैंने तो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। ये क्यों इनको, मुझे क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करना? ये क्यों एकदम अमीरुल मोमिनीन? क्योंकि सारे इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती, इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हिंदुस्तान की इस वक्त कोशिश किया, किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। जो भी इस वक्त हमारी फौज को अटैक कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, ये जो नवाज शरीफ कर रहा है, ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। पहले तो मुझे इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। हमें बताया जा रहा है जी ये पता नहीं किसी वक्त भी मर सकता है, इसको इतनी बीमारियां हैं, इसको ये प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं। कोई शर्म नहीं है झूठ बोलने में। और वहाँ जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को अटैक कर रहा है। इसको 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुज़दिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता। और वहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ इसका 1 पॉइंट एजेंडा है, अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दो पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। पीटीएम की मरकजी क़यादत का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकजी अहदेदारों का फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एपीसी में शामिल 12 अपोजिशन जमातों की मरकजी क़यादत का वीडियो लिंक इजलास आज होगा, जिसमें अहदेदारों का फैसला किया जाएगा। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इस इजलास में हुकूमत मुखालिफ रैलियों, जलसों और एहतजाज का रोड मैप तय किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत की सूबे भर में रेवेन्यू अवाम खिदमत कचहरियाँ, हज़ारों शहरियों के रेवेन्यू से मुतल्लिका उमूर मौके पर ही हल किए गए। रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत का जल्द अजाला हो सकेगा। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि हम फरसुदा निज़ाम को यकसर बदल कर अवामी उमंगों के मुताबिक बनाएंगे। मज़ीद तफसीलात लियाकत अंसारी से जान लेते हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा इन अवामी खिदमत कचहरियों से मुतालिक। आज बिल्कुल गुज़ारा खिदमत में सूबा भर में जो रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ ये लगाने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला कई इजलास में ये मामला सामने आए थे कि रेवेन्यू के मामला में लोगों को बहुत मुश्किलात और शिकायत का सामना है, जिस पर यह फैसला किया गया कि जो हर माह काम के पहले वर्किंग डे जो है वो उस दिन वो 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुद रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया है कि रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत का जल्द अजाला किया जाएगा और इस हवाले से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में दुरुस्ती रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, इंतकालात का अदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मामला को हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार कानून को पटवारी और अमला राजी रिकॉर्ड जो है वो इन कचहरियों में मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इन कचहरियों की जो है जो हर माह के पहले वर्किंग डे में होंगी, इनकी रिपोर्ट भी ऐवान वज़ीर आला भेजी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो जाए होशियार, क्योंकि आटा मजीद महंगा होने के खदशात पैदा हो गए। हुकूमत की जानिब से दरामद की जाने वाली गंदम पहले से ज्यादा निर्खों पर खरीदी जाने लगी है। मजीद आमिर जमील की रिपोर्ट में। पख्तूनख्वा हुकूमत के गंदम के हवाले से दरपेश मसाइल को कंट्रोल करने के दावे पूरे न हो सके। गंदम की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल न किया जा सका। हुकूमत की जानिब से दरामद की जाने वाली गंदम भी पहले से ज्यादा नरखों पर खरीदी जाने लगी। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं महंगी गंदम खरीदने से आटे की कीमत 1800 रुपए तक बढ़ेगी। हमारा KP के गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर ले खुद, और वो रेट अभी जो मुनासिब रेट पे दे रहे हैं, अगर इस रेट में दे और वो भी फिर अगर 6000 से 8000 टन पर डे दे तो हमारा सूबा कंट्रोल होगा, वरना नामुमकिन है। 20 किलो का थैला जो है वो 1060 रुपये का गंदम कास्ट करती है। उसकी प्रोसेस करके भी तो मिल वाले को वो तकरीबन 40 या 150 में पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है वो जब बेचेगा और मार्केट में आएगा तो 1200 से ऊपर ही बिकेगा। दूसरी जानिब हुकूमत आटे और गंदम के नरखों को कंट्रोल करने के बजाय दरामद और बरामद के चक्कर से ही ना निकल सकी। मामून खुसूसी इतलात ने फ्लोर मिल्स मालिकान से अलग ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। इनका कहना है कि गंदम दरामद किए जाने से नरखों में कमी आएगी। हुकूमत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है गंदम और आटे की फराहमी के ऊपर। हम 1.5 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.5 लाख मज़ीद का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और तकरीबन 2 लाख टन मज़ीद कैबिनेट से अप्रूवल आ चुकी है, तो 5 लाख टन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह जो यहाँ पे फ्लोर मिल्स हैं उनको सस्ते आटे की फराहमी इंश्योर कर रहे हैं। हमारे एडवाइज़र साहब ने कल 2 मिलों को सील किया हुआ है, वो खुद विजिट पर हैं। पेशावर की मार्केट में 20 किलो फाइन आटा 1250 से 1300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी कीमत अगले 2 माह में मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। आटे की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को गंदम दरामद करने के साथ साथ दीगर बरवक्त और मुअस्सर इक़दामात भी करने होंगे ताकि किसी भी बहरान से बचा जा सके। कैमरामैन कमरान पराचा के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। गंदम बहरान के बायस आटे की किल्लत और निर्खों में मजीद इजाफे का खदशा मंडलाने लगा। सरकारी सतह पर गंदम की दरामद का अमल टेंडर्स की तलबी से आगे न बढ़ सका। मुल्क की पैदावार मार्केट में आटे में अभी 5 से 6 माह बाकी हैं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए।